कूटनीतिक फ्रंट पर एक बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है। पाकिस्तान को वैश्विक दबाव के आगे, भारत की डिप्लोमेसी के आगे झुकना ही पड़ा और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में यह ऐलान किया कि बंदी बनाए गए पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन को शुक्रवार को भारत को सौंप दिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने ये जोड़ा कि शांति का संदेश देने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। और हम लगातार कह रहे हैं कि एक तरफ वो ये ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन, जो कि उनका असली चेहरा है, और यही उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आया, जिसके बाद अन्य देशों ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने की शुरुआत की। आज अमेरिका की ओर से आए बयान ने पाकिस्तान, जो कि पहले से ही बैकफुट पर था, उसे और पीछे धकेल दिया। और ऐसे में जब कोई चारा नहीं बचा तो यह ऐलान संसद के जरिए करना पड़ा और साथ ही संदेश शांति का देने की भी कोशिश की। और ये लाइव तस्वीरें वाघा बॉर्डर से आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। परेड का मकसद की है, एक सद्भावना का संकेत है ये परेड। और इस परेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਦਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ he should come back. Of course, it was an incident which took place on the LOC. हवा की रुख से या कुछ उधर को चला गया होगा पैराशूट, but he should be brought back now. I hope that Pakistan will understand this, that this is a step towards friendship and normalization. Thank you. Excuse me.
विंग कमांडर अभिनंदन के साथ पाक क्या कदम उठाता है, ये एक सवाल था। ये सवाल कभी भी नहीं रहा कि क्या पाकिस्तान उनको रिहा करेगा या नहीं। सवाल ये था कि वो कब रिहा करता है, किस वक्त रिहा करता है। इसका जवाब आज मिल गया। सवाल दरअसल सिर्फ यही क्यों था, उसका रीजन है जिनेवा संधि, इंटरनेशनल उस पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो भी एक अहम वजह थी। और सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, मैं देख सकता हूं अब आपके पास भी कुछ लोग हैं, पहले उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की जैसे ही घोषणा हुई है तो सरहदी इलाके अनूपगढ़ में भी अब जो उसकी खबर पहुंच चुकी है और यहां भी युवाओं में खुशी, हमारे देश वासियों में खुशी जो है वो देखी जा सकती है। मिठाई आ चुकी है, ये देखिए आप, एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया जाने लगा है। और ये वो लोग हैं जो इस बात की अहमियत को जानते हैं कि किस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है और कितना प्रेशर भारत की तरफ से वहां रहा होगा, हमारी सेनाओं का प्रेशर रहा होगा कि वो लगातार अब उसको रिहा करने के लिए अपनी संसद की जॉइंट सेशन में जो है वो वहां पर इमरान खान ऐलान करते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस बड़ी जीत सी ही मानी जाएगी। कूटनीतिक स्तर पर भारत की जो जीत हुई है उससे कहीं न कहीं ये उत्साहित हैं, काफी खुश लग रहे हैं। बहुत ही खुशी है जी, बहुत ही खुशी। अभिनंदन जी, अभिनंदन जी का स्वागत पूरे अभिनंदन के साथ किया जाएगा। बहुत ही खुशी है हमें, पाकिस्तान ने हमारे देश के बच्चे को बिल्कुल वापिस वहाँ उसके घर उसके गांव पहुँचाने के लिए राजी हुआ है और हम अपनी सरकार से भी बहुत ज्यादा उत्साह है। आप कैसे देखते हैं इस समूचे मामले? हम तो ऐसे देखते हैं, गब्बर इज कम बैक, शेर कभी बांधे नहीं रुकता। शेर कभी बांधे नहीं रुकता। और आप जैसे ही भारतीय सेना ने ये दबाव बनाया, कूटनीतिक जो जीत है भारत की वो कहीं न कहीं इस फैसले में दिख रही है। पाकिस्तान ने जो फैसला लिया जॉइंट सेशन में, वहां पर संसद की इमरान खान ने जिस तरह से ऐलान किया है कि कल अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन, उनको रिहा किया जाएगा, उनको वापस भारत को सौंपा जाएगा। तो यहाँ के लोग उतावले हैं कि वो अभिनंदन किस तरह से करेंगे। और खासतौर से जब वो एक राजस्थानी हैं, भारतीय वायुसेना के वो जाबाज पायलट हैं जिनको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। जी स्वप्निल जी। रवि, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक खुशी का लम्हा है, एक अहम घटनाक्रम जिसका इंतजार 5 बजे के आसपास किया जा रहा था। फिलहाल उसे लेकर कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो तीनों सेना प्रमुख थे वो आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अब ये अपुष्ट सूत्र हैं, हालांकि सटीक जानकारी से कहें या हम इसकी पुष्टि करते हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा फिलहाल, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद 7 बजे के आसपास अब वो साझा प्रेस वार्ता करेंगे। इससे अगर हालांकि ऐसे मामलों में स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि शायद कुछ ऐसा था अब जिसे फिर से रिवाइव करने की जरूरत पड़ रही है, जो वो मीडिया के साथ साझा करते ही ये जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं। अब मैं वापस रवि आपके पास इस डिस्कशन के साथ आ रहा हूं। अभिनंदन को लेकर देखें तो राजस्थान का शुरुआत से, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का शुरुआत से जो रुख रहा वो उससे पलटता भी दिखा। जैसे उसने पहले कहा हमारे पास 2 पायलट है, एक हमारे पास है, एक का इलाज चल रहा है। बाद में वो उससे पलटा, फिर उसने कहा कि हमारे पास सिर्फ अभिनंदन है। इसके अलावा अगर देखें तो जो वीडियोस वायरल हुए विंग कमांडर अभिनंदन के, वो अपने आप में जिनेवा संधि का उल्लंघन था। इसके बाद भी अगर वो नहीं करता, ये घोषणा नहीं करता, अब इसके बाद चाहे वो चाशनी में कितने ही शब्द डुबो ले कि भारत में चुनाव है, जो कि इमरान खान ने कहा, इसके अलावा वो शांति के संदेश देने की बड़ी बड़ी बातें कर लें, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उसके पास कोई चारा बचा भी नहीं था, वो वैसे भी अलग थलग पड़ चुका था। वेरी सिग्निफिकेंट एंड रवि, आ रहा हूं आपके पास। वी शुड कीप सेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रायोरिटी ऑफ फॉर इंडिया। सर, ये जो लंगर आप करवाते हैं, हमने पहले भी सुना था कि हम जगह। चलिए, रिएक्शंस लगातार मिल रहे हैं और इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, आप मेरे साथ बने रहे, मैं शैलेंद्र का भी यहां पर रुख करना चाहता हूं। शैलेंद्र, तीनों सेना के जो प्रमुख आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे,
उसे लेकर मुझ तक अब तक कोई जानकारी पहुंची नहीं है। क्या आप कुछ स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे? स्वप्निल, आपको बता दूं कि आज शाम 5 बजे तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक ब्रीफिंग होनी थी 5 बजे आज शाम में, लेकिन इस बीच में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको बता दूं, एक तो पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से यह बयान दिया गया कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई कल होगी, और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में 6:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी है। तो ये 2 वजूहत मानी जा रही हैं, ये 2 वजह मानी जा रही है जिसके चलते इसको फिलहाल टाल दिया गया है, और अब ये ब्रीफिंग जो है 7 बजे होगी। तो आज शाम को 7 बजे डिफेंस मिनिस्ट्री में जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो इस पे ब्रीफ करेंगे ताज़ा हालात को लेकर। तो फिलहाल इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है, एक तो ये कि कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई, दूसरा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी है जिसको प्रधानमंत्री मोदी चेयर करेंगे, उसके चलते इसको फिलहाल टाल दिया गया है 2 घंटे के लिए, और अब ये ब्रीफिंग 7 बजे होगी। ठीक, शैलेंद्र, अब मैं वो सवाल जिस पर लगातार एक बात है जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उस पर आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। सवाल दरअसल ये कभी था ही नहीं कि क्या पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ेगा या अपनी किसी रणनीति के तहत उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने पास ही रखेगा। सवाल हमेशा से यही था कि वो कब छोड़ेगा और किस वक्त तक छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वैसे भी जेनेवा संधि की बात हो रही है, तो मैं ये बता दूं कि जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन शर्मा के वीडियोस वायरल हुए, उस संधि के 1-2 क्लॉज तो पाकिस्तान ने वैसे ही तोड़ दिए थे। देखिए, इसको अगर टोटलिटी में देखें तो सबसे पहले इमरान खान ने आज नेशनल असेंबली को एड्रेस करते हुए इस बात की घोषणा की कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा, कल रिहा किया जाएगा, और अपने आप में ये स्वागत योग्य अनाउंसमेंट है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ग्रुप कैप्टन JD कुरियन, जो हमारे एयर अटैचे हैं पाकिस्तान में, जो भारतीय दूतावास हैं वहां पर ये कार्यरत हैं, और ये विंग कमांडर अभिनंदन के साथ कल उनको लेकर भारत लौटेंगे, और करीब दोपहर में ये वापसी होगी। वाघा बॉर्डर के जरिए उनकी वापसी होगी, कल दोपहर तक ये मुमकिन हो पाएगा। तो मान लीजिए कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इनको भारत को सौंप दिया जाएगा, और भारतीय दूतावास में जो हमारे एयर अटैचे हैं वो इनको लेकर कल दोपहर भारत लौटेंगे। तो कुल मिला के से कहा जा सकता है कि अब कोई इसमें रोक टोक नहीं हो पाएगी पाकिस्तान की ओर से, उनकी वापसी कल होना तय है। दूसरी बात यह कि आज ही दोपहर में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया था, अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। माना जा रहा है कि वही अच्छी खबर यही होगी कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान करे। तो ऐसे में इसको अगर जोड़ के देखा जाए, मैं शायद गलत भी हूं, अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है। जब डोनाल्ड ट्रंप वियतनाम के हनोई में जाके इस तरह का बयान देते हैं कि जल्द ही ये एक अच्छी खबर होगी, और इससे कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जो बीच बरकरार जो तनाव चल रहा है वो जल्द खत्म होगा। तो ऐसे में उसके 2 घंटे के अंदर ही इमरान खान नेशनल असेंबली को एड्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि हम विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई करने वाले हैं। तो इसको जोड़ के देखा जाए, 2+2 हो तो समझ में आता है ये क्यों किया गया है। दूसरी अहम बात ये कि क्या इस रिहाई से भारत और पाकिस्तान के तनाव पर कोई असर पड़ेगा? इसका साफ और सीधा जवाब यह है कि यह लड़ाई विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर नहीं थी, ये लड़ाई आतंकवाद को लेकर थी। हमारे सूत्रों ने साफ किया है कि जानबूझकर पाकिस्तान इस पूरे लड़ाई को आतंकवाद से हटाकर विंग कमांडर अभिनंदन की तरफ मोड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। और भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि यह रिहाई बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, और एक व्यक्ति विशेष को मोहरा बनाकर पाकिस्तान समझेगा कि हमने भारत को घुटनों के बल हम उसको ले आए हैं और हम इसे नेगोशिएट करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर भारत ने इन तमाम मांगों को ठुकरा दिया, यहां तक कि बातचीत का ऑफर भी ठुकरा दिया। भारत की मंशा साफ है कि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ समझौते का तो शैलेंद्र, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि समझौते का तो कोई चांस ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ये बात भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट भी कर दी थी कि विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर कोई समझौता करने की स्थिति में पाकिस्तान था भी नहीं। मैं एक और चीज, क्या ये क्लियर हो पाया है कि कल कब तक सौंपा जाएगा, और जिस वक्त भारत को विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपा जाना है, क्या मीडिया को वहां पर मौजूद रहने दिया जाएगा, या इस तरह की कोई जानकारी, या फिर ठीक सब कुछ उसी तरह से होगा जैसा आपको याद होगा करगिल युद्ध के दौरान नचिकेता के वक्त हुआ था?
देखिए, जैसे मैंने आपको अभी जानकारी दी कि पहले तो विंग कमांडर अभिनंदन को हवाले किया जाएगा भारतीय दूतावास को, जो कि इस्लामाबाद में है। अभी जहां पर उनकी कल गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनको किसी अननोन लोकेशन में ले जाया गया था। कहां रखा गया था इसकी जानकारी पाकिस्तान ने भारत को नहीं दी है, लेकिन इसके बाद उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा और इस्लामाबाद में उनको भारतीय दूतावास के हवाले किया जाएगा। और भारतीय दूतावास में जो जरूरी जो कार्रवाई है उसके बाद वो सड़क मार्ग के जरिए वाघा बॉर्डर से होते हुए वापस भारत में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि वाघा बॉर्डर पर उनके स्वागत के लिए हो सकता है कुछ मीडिया को अलाउ किया जाए, क्योंकि वाघा बॉर्डर पे मीडिया रहता है। लेकिन इसके पीछे, ऑप्टिक्स के पीछे ना जाएं, ये भारत के लिए कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। भारत का मकसद विंग कमांडर अभिनंदन को, सिर्फ विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाना नहीं था। भारत का मकसद यह था कि पाकिस्तान कार्रवाई करे आतंकवाद के खिलाफ, वो आतंकवाद जिसने 40 जवानों की शहादत ली है पुलवामा में अब से कुछ दिन पहले। उसके बदले में ही भारत ने कार्रवाई की थी आतंकवाद के खिलाफ, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ। लेकिन जानबूझकर पाकिस्तान इस लड़ाई को रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है और विंग कमांडर अभिनंदन की तरफ इसको लेके जा रहा है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि इसको हम इस मामले पर कोई नेगोशिएशन नहीं हम करेंगे, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन की तुरंत वापसी होनी चाहिए और बिना शर्त के उनकी वापसी होनी चाहिए। और भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि इसको लेके हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। वहीं साथ ही साथ एक ऑफर और दिया गया था पाकिस्तान की ओर से कि प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इसको लेकर भी भारत ने यह साफ कर दिया कि किसी बातचीत के लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान माहौल तैयार करे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके, और ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और ये कार्रवाई जो है वो विश्वसनीय होनी चाहिए और प्रमाण योग्य, यानी ये वेरीफाइबल होनी चाहिए। तो अगर ये कार्रवाई पाकिस्तान करता है तभी भारत को ये यकीन होगा कि पाकिस्तान संजीदा है, सीरियस है, आतंकवाद के खिलाफ है। तभी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो सुधर पाएंगे। ये लड़ाई कभी भी विंग कमांडर अभिनंदन के लिए थी ही नहीं। ठीक है शैलेंद्र, और भी सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहूंगा फिलहाल आप मेरे साथ बने रहें। हमारे दर्शक लगातार ब्रेकिंग के जरिए ये भी देख पा रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपडेट्स हैं वो हम ग्राफिक्स में इस वक्त चला रहे हैं, जिन्हें वो हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये सिर्फ एक नो डाउट एक खुशी का लम्हा है, एक इवेंट है कि विंग कमांडर अभिनंदन लौटेंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ तस्वीरें हैं, किसी तरह की कोई तब्दीलियां ऐसे तो बनती नहीं है, बनी भी नहीं होंगी? बिल्कुल स्वप्निल, बॉर्डर पर जो है पश्चिमी राजस्थान से जो लगती हुई सीमा है वहां हाई अलर्ट पहले की तरह है, जनजीवन सामान्य है। इस दौरान ये खबर जब विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में जो आती है उससे एक खुशी की लहर देशवासियों में होती है, क्योंकि जैसा कि हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि हमारी लड़ाई जो है विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ थी, और आतंकवाद की लड़ाई जो है वो अभी भी जारी है। उसको नेस्तनाबूद करना भारत की पहली प्राथमिकता है, और इसी वजह से शायद ये कूटनीतिक जो स्तर पर भारत की जो जीत हुई है, अभिनंदन की वापसी, ये अपने आप में देखी समझी जा सकती है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान की संयुक्त संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने, इमरान खान ने जो बयान दिया, उसके बाद में अब हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद की हमारी लड़ाई के दौरान जो ये घटनाक्रम हुआ था, विंग कमांडर अभिनंदन को वहां पर पाकिस्तान ने जो अपने कब्जे में लिया था, वो उनको बिना किसी शर्त के ससम्मान वापस भारत को लौटा रहा है। तो ये कूटनीतिक जीत भारत की हुई है, और इस बात को यहाँ के लोग भी समझते हैं, ग्रामीण भी समझते हैं। आपने भी जिक्र किया नचिकेता का, जो पायलट नचिकेता थे करगिल वार के दौरान, उनको 7 से 8 दिन का वक्त लगा था। उसका और अभी का कंपैरिजन किया जाए स्वप्निल, तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब पायलट नचिकेता पाकिस्तान के कब्जे में थे करगिल वार के दौरान, तकरीबन 1 हफ्ते बाद में उनकी रिहाई हो पाई थी। जेनेवा संधि की आप बात कर रहे थे, जिसकी पाकिस्तान कल उनकी तस्वीरें वायरल करके उनकी धज्जियां, जो उसके कई नियम थे, वो उड़ा चुका था खुद। और इसीलिए एक एडवाइजरी कल इन बॉर्डर इलाकों में भी जारी की गई थी कि किसी तरह से सोशल मीडिया पर उन वीडियोज को, उन फोटोग्राफ्स को जो है वायरल ना किया जाए, क्योंकि किसी भी जो दुश्मन देश है, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके कब्जे में हमारे विंग कमांडर है, उनके विजुअल्स और ये सब पाकिस्तान के द्वारा ही फैलाए जा रहे थे। अंततः आज किसी तरह से कूटनीतिक दबाव में पाकिस्तान आया और उस विंग कमांडर अभिनंदन को कल वापस इंडिया को सौंपा जाएगा। उसके बाद में जो हालात है वो बदसूर वैसे के वैसे ही हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, हमारी जो फोर्सेज हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर
एयर स्ट्राइक की, उसके बाद में जो पाकिस्तान का जो एक बिलबिलाता सा चेहरा सामने आया था और जिस तरह से वो घुटनों के बल, मतलब ये दबाव की राजनीति थी, उसके बाद हाई अलर्ट घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर स्वप्निल, जिस बात का हम जिक्र करते आ रहे हैं शुरू से, हमारी सरकार भी इसी कूटनीति को समझाने में कहीं न कहीं सफल हुई है। दूसरे देशों को भी और पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश इस घटनाक्रम से मिला है कि भारत बिना शर्त, भारत की कोई शर्त आप नहीं लगा सकते। विंग कमांडर अभिनंदन के जरिए किसी ब्लैकमेल स्तर पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकता, वार्ता के लिए जबरदस्ती वहां नहीं की जा सकती। तो ये तमाम चीजें जो है एक एज के रूप में भारत के पास में वापस है। स्थितियां जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की अभी भी जारी है। अब हमें देखना होगा, हमारी सरकार को देखना होगा कि आगे इस आतंकवाद की लड़ाई को और कितना मजबूती से आगे बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान से ये आतंकवाद का रोग जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो। जी ठीक है। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं इमरान खान ने जो कुछ भी बोला है संसद में, मैं उसके हाइलाइट्स जब देखता हूं तो मोटे तौर पर ये मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना कौन सा चेहरा दिखाना चाहता है। देखिए, उसने बातचीत गोलमोल करके भारत में चुनावों का समय और इस तरह की बातें बोली हैं, लेकिन फिर अपनी ही क्रॉसिंग बातें भी बोली हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान पर हमला हुआ, हमने सेना से बात की तो तय किया कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके अगले दिन कुछ करने का दुस्साहस दिखाने की कोशिश जरूर पाकिस्तान ने की। मैं कहना यह चाहता हूं कि उनके बयान में उनकी आगे की रणनीति तो दिख रही है, लेकिन इंटरनेशनली जिस तरह से हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है, उस तरह से उनकी कूटनीति इस एक रास्ते से उसकी काट के तौर पर तो नजर नहीं आती। देखिए, बिल्कुल इमरान खान का जो आज भाषण था नेशनल असेंबली में जॉइंट सेशन को जो उन्होंने देते हुए बोला है, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो उस पर जिस तरह से पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में अलग थलग पड़ा है, चाहे अमेरिका की बात करें या P5 कंट्रीज की बात करें, बड़े जो मुल्क हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, उनकी बात करें, पड़ोसी मुल्कों की बात करें, या फिर अब OIC की बात करें, वो OIC जो कि पाकिस्तान जिसका फाउंडिंग मेंबर भी है और वो इस्लामिक देशों का एक संगठन है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है आज। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव अंतर्राष्ट्रीय है और न सिर्फ भारत की ओर से बल्कि तमाम मुल्क आरोप लगाते हैं पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर। वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अगर हम कल की बात करें, जो डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई थी, जो आज हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है, उसके मुताबिक कल सुबह करीब 9:45 बजे पाकिस्तान की ओर से 20 फाइटर विमान भारत के LOC के पास पहुंचे थे। उसमें से कुछ फाइटर विमानों ने घुसपैठ की है और उसके बाद लेजर गाइडेड बॉम्ब से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की। ये वो चेहरा है इमरान खान का जो आज असेंबली से बिल्कुल जुदा है। जो आज उन्होंने असेंबली में कहा है, ये बिल्कुल उसके उलट है। आपको ये भी बता दूं कि इस कार्रवाई के बाद जब भारत की ओर से वापसी जवाबी कार्रवाई की गई तो उनको वहां से दुम दबा के भागना पड़ा और एक उनका विमान भी इसमें क्रैश हुआ, जिसके बाद एक झूठ पाकिस्तान ने बोले हैं। और कश्मीर का भी जिक्र किया शैलेंद्र, सबसे अहम बात यह भी है कि कश्मीर का भी जिक्र किया उन्होंने। हमसे ये सवाल पूछा कि क्या इस तरह के जुल्म से कश्मीर पाया जा सकता है। ये सवाल पूछने का हक उनको नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में ठीक है अपना एक चेहरा दिखाने के लिए ये सवाल उछाल दिया होगा, लेकिन इस तरह ये भी एक डाइवर्शन गेट खुला रखने की स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की, फिलहाल जितना मैं समझ पा रहा हूं। शैलेंद्र, मैं चाहूंगा आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। रवि, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी मेरे साथ बने रहें। आगे हम चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये जान लेते हैं। प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है। पहले तो प्रैक्टिस थी, तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है। पहले तो और शैलेंद्र और रवि बने रहे। अगले बुलेटिन में फिर आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।